तो ट्रंप इंतज़ामिया से पहले सदर बराक ओबामा के दौर में जब इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत सामने आई थी तो सदर ओबामा का कहना था कि दहशतगर्द अनासर के खात्मे की कोशिश जारी रहनी चाहिए, लेकिन हर जंग की तरह इस जंग का अख्ताम भी होना चाहिए। तो ट्रंप इंतज़ामिया ने यह कहकर कि अमरीका ये जंग जीतेगा क्या एक नया हदफ पेश कर दिया है, और इस गोल को हासिल करना किस हद तक मुमकिन होगा, इस बारे में हम बात करेंगे अमेरिका की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से मुंसलिक सिक्योरिटी उमूर के माहिर डॉक्टर मैक्स एब्रम से। मैक्स, वेलकम टू व्यू 360। So this strategy does include the fact that the threat of terrorism is evolving. There is no one way. There are several ways in which it's changing its shape. But it also says that America will win this war. Is this a realistic goal? Is it possible to put maybe an idea of what winning looks like in this war? Sure. I mean, I think that there's no question that there is an evolution in the terrorism threat. The terrorism threat isn't static. Terrorists are strategic actors, and so they're constantly adapting to government countermeasures and therefore changing. But one thing that is constant is that fighting terrorists is very, very hard. And as such, it probably is unrealistic to think that we're going to snuff out the terrorism threat entirely. All right. So let me just let our viewers know. So Max Abrams कहते हैं कि जहाँ तक इस हिकमत अमली में ये जो जुमले शामिल किए गए हैं कि अमेरिका ये जंग जीतेगा, ये कुछ गैर हकीकी लगता है। वो इसलिए क्योंकि ये बात सच है कि टेररिस्ट और टेररिस्ट की जो थ्रेट है वो मुसलसल बदल रही है, और ये बात एक कांस्टेंट है, हमेशा ही रहेगी कि इनके साथ लड़ना और इनको ख़त्म कर देना जो है मुकम्मल तौर पर, ख़ास तौर पर वो इंतहाई मुश्किल है। So Max, in terms of, we mentioned this thing that last time it was President Obama's tenure in which we saw a policy like this come out. What have you seen as some things that are different? What is President Trump doing differently this time? Well, on a rhetorical level, when you actually look at the document that came out of the White House, one of the most salient differences is the focus on ideology, radical Islamist, terrorism. That's wording that's very distinctively, Trump. And you wouldn't expect to see that under Obama. This was variations of that phrase were a common feature of Trump's campaign platform. In practice, the biggest difference, in my opinion, between Obama and Trump is Trump's focus on Iran. Throughout the document, it's peppered with warnings about the Iranian threat, how Iran is the biggest state sponsor of terrorism in the world. And indeed, when you look at the Trump's counterterrorism strategies all over the world, you do see a bigger focus to contain Iran. All right. सो मैक्स एब्रम्स कहते हैं कि जिस तरह हमने भी जिक्र किया 2011 में सदर ओबामा ने भी काउंटर टेररिज्म पॉलिसी पेश की थी, तो उसमें और इस पॉलिसी में बड़ा फ़र्क वही उसी इस्तिलाह का है जिसका हमने भी जिक्र किया, रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट। ये ऐसे अल्फाज हैं जो मैक्स एब्रम्स भी कहते हैं कि ओबामा दौर में हम नहीं सुनते थे पॉलिसी मेकिंग की हद तक, लेकिन सदर ट्रंप ने इन अल्फाज का इस्तेमाल अपनी सदारती मुहिम के दौरान भी किया और वो मुख्तलिफ मौक़ों पर इस तरह के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करते रहे, और अब ये कह लीजिए कि पॉलिसी का, हिकमत अमली का एक ठोस हिस्सा बन गए हैं। और दूसरा बड़ा फ़र्क माजी के मुकाबले में इस पॉलिसी में है वो इसका फोकस जो ईरान पर है। सदर ट्रंप वैसे भी ईरान को सख्त तनकीद का निशाना बनाते रहे, और अब कह लीजिए कि हिकमत अमली के अतबार से भी अब उनका फोकस ईरान की जानिब है। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, मैक्स। नाउ दैट वी हैव द स्ट्रैटेजी इन फ्रंट ऑफ अस, how do you get over the gap between words, between rhetoric and actual implementation, especially when it comes to de-radicalization and recruitment efforts? Sure. I mean, the strategy document is very broad and abstract and vague, and it's not entirely clear how that will translate into implementation. The reality is that no government has figured out how to combat terrorist recruitment and radicalization. It's a very different game now than it was, say, in 2011, the last time there was a White House counterterrorism strategy. The online game is much bigger. Islamic State, one of its biggest innovations was its supposed mastery of social media, its use of Twitter, Facebook, encrypted systems like Telegram, which allows
a much more geographically dispersed recruitment strategy all over the world, particularly targeting aggrieved, even lone wolf Muslims to strike out and attack Western countries, even with very sort of basic primitive means like vehicular attacks. And we don't have a solution to that. All right. So Max कहते हैं कि जो अभी जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी आई है जिसकी हम बात करें, एक तो मसला ये कि जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया है उसमें ठोस किस्म के इक़दाम का जिक्र नहीं किया गया कि जो गोल्स हासिल करना चाहती है ट्रंप इंतज़ामिया उनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, किस तरह से इस हिकमत अमली को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक जो बड़ा इशू है वो ये है कि अमरीकी हुकूमत और दीगर हुकूमतें भी जो डी रेडिकलाइजेशन है यानी जो इंतहा पसंद नज़रियात हैं उनका रुझान रोकने के लिए और इंतहा पसंद तंजीमों की जानिब लोगों को माइल होने से रोकने के लिए जो कोशिशें हैं उनमें बहुत कामयाब नहीं हो सकी और 2011 से अब के मुकाबले में ख़ास तौर पे ये थ्रेट बढ़ भी गई है इंटरनेट की वजह से। सोशल मीडिया पे दाइश की जो सरगर्मियाँ हैं उसका जिक्र किया मैक्स एब्रम्स ने। उन्होंने कहा कि वो ऐसे लोगों को भी अपनी जानिब न सिर्फ राग़िब करने पे बल्कि बड़े कह लीजिए कि ऐसे तरीक़ों से मगरबी ममालिक में हमला करने पर भी लोगों को आमादा कर चुकी है जो बहुत सिंपल बहुत बेसिक से कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कोई बड़ा बम धमाका नहीं बल्कि सिर्फ चाकू छुरी से लोगों पर वार करना या गाड़ी को मजमे पर चढ़ा देना। तो इस तरह के जो एफर्ट्स हैं वो बहुत मुश्किल हैं, लोगों को डी रेडिकलाइजेशन के जानिब लाना और ऑनलाइन जो रिक्रूटमेंट है उसको रोकना बहुत मुश्किल है और उस हवाले से ठोस इक़दाम इस पॉलिसी में नज़र नहीं आते। मैक्स एब्रम्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट, वाज विद अस फ्रॉम बॉस्टन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।